Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our 10th workshop, K nearest neighbors, which is another classification algorithm. So it means after today's workshop, we may have completed 33% of entire program, machine learning zero to hero. So let's continue towards the real implementation of K nearest neighbors. Before implementation, we will know what is actually KNN is. K nearest neighbor is actually known as lazy algorithm, and why it's known as lazy algorithm, we will know about that as well. And it is a very popular algorithm, which is must be known by every machine learning engineer, of course. So let's just get back to this Colab. Wait a minute. All right, and now I'm sending it live. All right, so I'm pretty sure that you are that my Google Chrome is clearly visible to you, and you can clearly visit or clearly visible to my notebook. All right, you can navigate this code at my GitHub. Simply navigate to my repository. I'm also sharing the code in Teams. Someone has asked from where I can download the slides. So we are not using any slides here. So you can access the code. Okay. So code is at GitHub. आप simply कॉपी पेस्ट कर लें कोड को या क्लोन कर लें. इट्स ऑल अप टू यू. सिंपली आप जाएंगे कोलैब के पास, कोलैब पे जाएंगे एंड यू गोना मेक न्यू नोटबुक एंड देन सिंपली आपको क्या करना है, कोड कॉपी पेस्ट करके ट्राई कर लेना है. एक दफ़ा दिखा देता हूँ. दैट लाइक ओपनिंग दिस. यहाँ पे गिटअप के पास आपके पास कोड खुल जाएगा एंड नाउ यू कैन जस्ट कॉपी दिस and paste here and just run it like control plus enter. It will take some time, about 10 seconds. Okay, so it has been run. It has imported all the libraries, but the point is कि आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्लोन करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली अपनी नोटबुक बना के इसमें कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं because it already have all types of libraries. लेकिन अगर आप अपने Jupyter notebook पे काम कर रहे हो then you have to install matplotlib, numpy, pandas and scikit-learn all packages individually from their sites, just like pip install, matplotlib, pip install, sklearn, and that's it. All right, just moving towards the K nearest neighbor. All right, what is K nearest neighbor? K nearest neighbor is a classification algorithm. What it does कि for example हमारे पास two class है in our dataset, और dataset क्या करता है कि K nearest neighbor दो dataset के दरमियान एक randomly point spot करता है. When it spots the point, it takes how many neighbor should be valued in my circle. मतलब एक point का एक specific radius के अंदर कितने मतलब नियरेस्ट नेबर होने चाहिए. नाउ इट कैन, फॉर एग्जांपल हमने के की वैल्यू 3 दी हुई है. ये हम सब आगे जाके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे. सो फॉर एग्जांपल हमने के की वैल्यू 3 दी है, सो इट मींस कि हमने नियरेस्ट नेबर्स की वैल्यू 3 दी हुई है. अब जहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है बीच में, दो क्लासेस के बीच में जहाँ ये पॉइंट आ रहा है, तो ये अपने करीबी मतलब 3 नियरेस्ट नेबर्स को अपने सर्कल के अंदर एक्वायर कर लेगा. अब वहाँ पे कौन से पॉइंट्स एक्वायर हो रहे हैं? दो पॉइंट्स एक्वायर हो रहे हैं इस क्लास के, एक पॉइंट एक्वायर हो रहा है इस क्लास का. तो इस तरीके से वो हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं कि वो दो क्लासेस के बीच के अंदर एक मल्टीपल पॉइंट्स देता है और देन इट स्पेसिफाई कि भाई यहाँ पे डिफरेंट क्लास है. अगर इस पॉइंट के, अगर यहाँ पे हम पॉइंट रख रहे हैं तो अगर इस पॉइंट के फॉर एग्जांपल इस तरफ कोई पॉइंट बनेगा तो वो उसको बोल रहा होगा, या बिल्कुल इस सर्कल के इस तरफ बन रहा होगा तो वो बोल रहा होगा दैट दिस इज क्लास बी. एंड फॉर एग्जांपल अगर इस तरफ बन रहा होगा उसको कह रहा होगा ये क्लास ए है. थोड़ा मजीद डिटेल में अगर जाएं
So assume that this is our initial data set. अच्छा ये बहुत easy data set की demonstration है. This data set is not having multiple features. आज हम जिस data set पर काम करेंगे it's having 3 features और जब multiple features होते हैं तो उसकी इस तरह की visualization नहीं होती है, बड़ा ही complex visualization होती है. कॉम्प्लेक्स से मुराद आप देख के अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि किस तरह की क्या हो रहा है, जितना आसानी से आप इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग इनिशियल डेटा which is having two classes, class A, class B. हमें कैसे पता क्लास ए और क्लास बी है? ऑफ कोर्स इट्स सुपरवाइज्ड लर्निंग, हमारे पास तमाम डाटा लेबल्ड होता है, हमें मालूम है कौन सा डाटा क्लास ए है और कौन सा डाटा क्लास बी है. वी ऑलरेडी न्यू दैट. अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक न्यू एग्जांपल दी. के नियरेस्ट नेबर क्या करता है, वो जगह जगह रैंडमली दो क्लासेस के दरमियान एज ए न्यू एग्जांपल पॉइंट दे रहा होता है. उस पॉइंट के करीब वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है. डिस्टेंस कैलकुलेट करने का उसका क्या फॉर्मूला होता है? यूक्लिडियन डिस्टेंस उसका फॉर्मूला होता है. इफ यू हैव स्टडीड हाई स्कूल प्रीटी वेल, सो यू ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला, यूक्लिडियन डिस्टेंस. मैं इस तरह की इक्वेशन दिखा दूँ आपको. यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला कोई आसान इक्वेशन नहीं मिल रही. Okay. So yeah, this is the most easiest equation we have studied so far in our high school. I hope it's pretty clear to you. थोड़ी बहुत blur हो रही हो so please compromise it or you can search parallel to your system, but it's included distance. So कर क्या रहा होता है? For example हमारे पास एक point 1 है और एक point 2 है. दोनों के पास, दोनों पॉइंट की हमारे पास x वैल्यूज होती हैं और दोनों पॉइंट की हमारे पास y वैल्यूज होती हैं. ये उसका फॉर्मूला होता है फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग डिफरेंस बिटवीन टू x पॉइंट एंड वी आर गेटिंग डिफरेंस बिटवीन टू y पॉइंट्स. देन वी आर स्क्वायरिंग इट, देन वी आर एडिंग इट, फिर हम उस तमाम जो हमारे पास एडिशन आ रहा होता है, देन वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दोस आंसर जो भी है, जो भी हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रहा होता है हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं. दैट इज नोन एज इक्विडियन डिस्टेंस, जो तरीका है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए. सेम फॉर्मूला इज बीइंग यूज्ड हियर. लेट मी क्लोज इट. सेम फॉर्मूला इज बीइंग यूज्ड हियर एट क्लास. फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे एक पॉइंट है तो ये फॉर एग्जांपल अगर ये 3 पॉइंट के पास जा रहा है, लाइक हेयर 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 हेयर, सो इट मीन्स कि यहाँ पे उसको हमने वैल्यू दी हुई है 6 और वो अपने 3 नियरेस्ट नेबर्स के पास जा रहा है और वो मालूम कर रहा है, मतलब अपने इक्विडियन डिस्टेंस के मुताबिक वो यहाँ पे डिस्टेंस नापेगा, 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 और जो बिल्कुल नियरेस्ट उसके 6 होंगे वो वहाँ पे उसको अपने सर्कल के अंदर ले लेगा. अब फॉर एग्जांपल ये भी इसके सर्कल में आ रहा होगा फॉर एग्जांपल, लेकिन वो सर्कल इसके ऊपर से ही ओवरड्रॉ हो रहा होगा, बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आ रहा होगा, मतलब इसके अंदर नहीं आ रहा होगा. ये ऑफ कोर्स की बात है, बहुत रेयर होता है कि उसके अंदर भी आ रहा हो नहीं आ रहा हो, तो सेम रिजल्ट्स बन रहे होते हैं, दो ही बिल्कुल अंदर साथ हो, लेकिन उसके अंदर भी के नियरेस्ट नेबर इतना एफिशिएंट होता है कि वो वही डाटा पॉइंट्स अपने पास अपने सर्कल के अंदर ले रहा होता है जो हमने इंक्लूडिंग डिस्टेंस के मुताबिक शॉर्टर डिस्टेंस में होता है. सो हियर इज हाउ कैलकुलेटिंग फाइंडिंग नेबर्स एंड वोटिंग फॉर लेबल्स. अब फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू दे दी 3, उन्होंने सबका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया और उसने बता दिया कि भाई मेरे पास सबसे 3 जो नियरेस्ट नेबर्स बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं, एक ये बन रहा है रेड रंग का जो क्लास ए का है और 2 क्लास बी के बन रहा है. तो हमने के की वैल्यू 3 दी थी तो उसने एक छोटा सा सर्कल बना दिया और इस तरह उसने अपने लेबल्स को वोट कर दिया कि भाई यहाँ के बाद इस पॉइंट के बाद जितने भी क्लास होगी हमारी क्लास बी होगी और इस पॉइंट के बाद जितनी भी क्लास होगी हमारी क्लास ए होगी. So this is how it's learning and this is how it's classifying the entire data set. अगर हम नीचे जाते हैं तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास देयर आर 2 goats and 3 cows. ठीक है, आपने बोला डजेंट मैटर कि उनका वेट कितना है, उनका मैग्नीट्यूड कितना है, वो अलग फीचर है, हमें करना है क्लासीफाई क्या, शीप्स गोट्स एंड काउस. तो we will put a random person in it या random machine in it और वो अपने नियरेस्ट देखेगा कौन कौन सी क्लास आ रही है. हमने उसको बोला k इज इक्वल टू लाइक 3. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 काउज आ गई और 2 गोट्स आ गए, एक गोट आ गया हमारे पास, तो वहीं से वो हैव प्लेन ड्रॉ कर देगा. नाउ
कि फ्रॉम दिस इंस्टेंस हमारे पास क्लास बी एंड फ्रॉम दिस इंस्टेंस हमारे पास क्लास ए है। यूजुअली मल्टीपल फीचर्स में इतना अच्छा काम नहीं भी करता, बट समटाइम इट वर्क प्रीटी वेल। ये हर दफ़ा के लिए इतना अच्छा नहीं, लाइक इफ़ यू आर हैविंग मोर देन 10-20 क्लासेस काम तो ये कर लेता है, बट वी गेट समटाइम्स ह्यूज एक्यूरेसी डिफरेंस, जो कि हम उसके लिए फिर ऑफ कोर्स रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर ही यूज़ कर रहे होते हैं। ऑलराइट, लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ K9 classifier. Okay, let me run all these libraries and let me tell you what library is doing what thing. Pandas is for data input output, NumPy is for NumPy array of course, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, but we are just using it for NumPy right now. And Matplotlib for visualization, sklearn.neighbors import kneighbors classifier. Today the most important function, or you can say the function of the day, the method of the day is के नेबर्स क्लासीफायर। हमारा पूरा का पूरा मॉडल यही है, के नियरेस्ट के नेबर्स क्लासीफायर। मैंने यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, के नियरेस्ट नेबर होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसका नाम सब दिया हुआ है के नेबर्स क्लासीफायर। सो वी आर importing this from sklearn.neighbors. Then we are importing some two different functions from sklearn.model selection, import train test split. हम चाहें तो उसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेट मी शो यू। यहाँ मैंने एक लाइन में लिख दिया एंड देन आई पुट कॉमा हियर एंड देन आई डोंट नीड दिस लाइन। सेम हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया फ्रॉम sklearn.metrics, जो हमने कल भी किया था एक्यूरेसी स्कोर के लिए और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के लिए। इन सब की जो आगे पढ़ती है मैंने पहले ही इंपोर्ट कर लिया टू मेक इट एवरीथिंग क्लियर। ये आपकी मर्जी, आप साथ साथ इंपोर्ट कर लें या पहले इंपोर्ट कर लें। ऑलराइट, एंड वी हैव आल्सो इंपोर्टेड दिस sklearn फॉर प्रीप्रोसेसिंग, importing this function pre-processing. All right, this is the entire library processing. हमने कोई specific function import नहीं किया, पूरा library import कर दिया, I don't know why. All right, so data framing हम इसके अंदर create data.csv import कर रहे हैं, which I have already shared in WhatsApp groups and Discord server as well in AI channel. So you can access the data file from here as well and from my GitHub repository as well, or from kaggle.com as well. So now let's see what's inside this data. I am importing this data set from my Google Drive. I have uploaded here, I have mounted here. So I hope you already know that. मैंने यहाँ पे URL डाल दिया अपने डेटा सेट का एंड नॉट्स importing my data set. After printing 20 lines of data set, we can easily explore कि हमारे डेटा सेट के अंदर क्या है। 5 लाइन में शायद इतना अच्छा नहीं मालूम होता, because we are having very less values of 1 in default, which is our prediction value today. Alright, so अगर हम डेटा सेट को एक्सप्लोर करें, let me make it little bit bigger. तो क्लाइंट आइडिया हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है। वाई? बिकॉज अगर हम फॉर एग्जांपल मल्टीपल क्लाइंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सो उनकी क्लाइंट नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू क्लासीफाई स्टूडेंट्स इन गुड स्टूडेंट्स एंड इन बैड स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन स्कोर्स, यहाँ मेरा क्लास क्या है, स्कोर्स है, तो अब मैं उनको क्लासीफाई करना चाह रहा हूँ। सो विल द रोल नंबर विल बी गुड फीचर फॉर ट्रेनिंग दैट मॉडल? ऑफ कोर्स नो। हमारे गुड फीचर्स क्या हो सकते हैं कि भाई कितना टाइम उन्होंने स्टडी करा है, कितना टाइम उन्होंने स्टडी करा है, कौन कौन सी क्लासेस उन्होंने ली थी, कौन कौन सी क्लासेस उन्होंने नहीं ली थी, हाउ मच टाइम दे हैव स्पेंड इन परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर टास्क, और देयर कैन बी एनीथिंग। तो वो फीचर्स हमारे ज़्यादा यूजफुल होंगे। ये फीचर हमारे लिए बिल्कुल कंप्लीटली यूजलेस होगा। दैट इज व्हाई वी आर नॉट काउंटिंग दिस। वी गोना एक्सक्लूड दिस फीचर और एक्सक्लूड दिस कॉलम later cell. Okay, income, age, loan, LTI default. LTI is simple loan to income ratio, so we don't need this as well. Machine learning is itself efficient कि हम अगर उसको loan और income दे रहे हैं, so it's gonna classify by itself कि मैं क्या predict करूँ। Alright, so हम यहाँ क्या दे रहे हैं? For example, assume it that these values are in dollars. Alright, so for example, there is a person who has age of 59 years and his annual income is $66,155. It's the annual income. Always remember कि usually income की जब बात आती है तो हमेशा annual भी होती है। Monthly income is traditional in Pakistan only, not in international. Now we are talking about loan, कि उसने loan कितना लिया है। ये डेटा सेट को बड़ा गौर से समझिएगा। एक बंदा है, उसके यहाँ पे एज मेंशन है, कितनी उसकी एज है, कितना वो एनुअली कमा रहा है और कितना उसने लोन लिया हुआ है, और क्या वो डिफॉल्टर है या नहीं है।
व्हाट इज डिफॉल्टर? डिफॉल्टर मींस कि उसने अगर उसने लोन पूरा पे नहीं कर पाया, उसने लोन पूरा नहीं कर सका, सो इट मीन्स दैट ही इज अ डिफॉल्टर। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कॉलम में हमारे पास 1 आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसने 66,952 अर्न किया, लेकिन ये इसने लोन कितना लिया है? 8,770। अगर हम यहाँ पहले लाइन पे देखें, ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज हैं। इसने 66,000 लिया, इसने 66,000 लिया हुआ है, बस लोन बल्कि इसने थोड़ा सा कम लिया है, लेकिन इसने ये डिफॉल्टर नहीं रहा। और इसने लोन बहुत ज़्यादा लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लिया है बस, लेकिन ये डिफॉल्टर है। इट देयर कैन बी अ स्पेसिफिक रीज़न वाई कि ये अच्छा खासा established पर्सन होगा, बिकॉज हिज एज इज 59 years and whereas he is just 18 years old, maybe because of some of his immaturity or anything it can be. So he is defaulter, ये अपना लोन पूरा वक्त पे पे नहीं कर सका। ऑलराइट, सो गोइंग फर्दर, इस तरह के हमारे बहुत सारे हमारे पास डिफॉल्टर्स भी होंगे और नॉन डिफॉल्टर्स भी होंगे। बट व्हाइल ऑब्जर्विंग दिस 20 लाइंस, हमें ये एक शक व शुबा है दैट वी आर हैविंग अ डाउट कि हमारे पास कितने डिफॉल्टर्स हैं। It seems like that we are having very low amount of defaulters. Sometimes it happens like if we are having 90% non-defaulters and 100% 10% defaulters, इतना ज़्यादा ratio हो, so sometimes machine learning model cannot be outperform those type of scenarios. For example, जब हम COVID की बात करते हैं, for example, I'm going to build a classifier on COVID. So मैं कोई भी for example data ले रहा हूँ, now I'm having huge amount of patients who are non-COVID, but I'm having very less amount of people who are having COVID. तो उस सिनेरियो के अंदर अक्सर औकात मॉडल इतना आउट परफॉर्म नहीं कर पाता। बट लेट्स सी एटलीस्ट क्या 20% से ऊपर हमारे पास इसका डाटा है या नहीं है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, आई हैव अ वेरी सिंपल ट्रिक। बहुत सारे तरीके होते हैं टू काउंट द नंबर ऑफ वंस हेयर, बट आई हैव यूज्ड अ वेरी सिंपल ट्रिक। व्हाट कि मैंने इस कॉलम को सम कर लिया। जीरो को ऐड करने से हमें मालूम हो जाएगा कि जीरो जीरो कोई दैट्स नॉट मेक एनी चेंज, लेकिन वन वन जब ऐड हो रहे होंगे तो इट गोना मेक सम चेंज। जब सारे वन ऐड हो जाएंगे तो इस तरह हमें आसानी से मालूम हो जाएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं। So I just use a very simple and logical technique to find total number of defaulters. If you want to use a difficult one to use to find number of defaulters, so it's all on you. You can use it. Okay, 283. So we are having 283 number of defaulters. Pretty good. It's more than 25 percent. So machine learning model is going to classify it easily. Never mind. All right, finding number of nan or missing values in all columns. अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वही टेक्निक जो हमने कल की थी, that we gonna find that if there is any missing value or NaN value in our entire data set किसी भी कॉलम के अंदर, तो तमाम कॉलम में बता देगा that in this column we are having how many NaN values or how many missing values. All right, so let's run this and we use x is equal to 0 for column and x is equal to 1 for raw. अभी हमें हर कॉलम की चाहिए, that is that we are using here x is equal to 0. इस कोड को एक दफा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Here this is the data. We are applying a function is NA. What is NA representing? Is NA representing is there is any NaN values or is there any missing values? If there is any missing values, then we have to sum all those values. Now in sum function we are using a sum method, sorry, and in sum method we are passing an argument like x is equal to 0. In this parameter we have seen x is equal to 0 में क्या कर रहा है कि वो कॉलम वाइज सबको ऐड कर रहा है, इट्स नॉट एडिंग रो वाइज। कॉलम वाइज ऐड करने के बता देगा किस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज है। Fortunately that today we are having a very cleared and pre-processed data set, so सबके अंदर हमारे पास zero है, so it means that we don't have to spend some time using this. As I've already told you, we are having multiple classifications as we have had multiple regression in the past. तो हर regression के अंदर मैं आपको एक नई चीज सिखा देता हूँ. So today we will learn some tiny more things. Then we're gonna have 3 more classifications as far as I know. So then we'll learn more things, 3 to 4 more classifications are left. We'll learn more things in every classification. कभी visualization के अंदर, कभी pre-processing के अंदर, कभी exploratory के अंदर, कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. I hope के सबको easily ताकि understanding के अंदर आसानी भी हो रही हो. All right, so now we'll go for feature extraction.
ना जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे लिए सब इनकम, एज और लोन ही बेहतरीन आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी बेहतरीन फीचर्स थे. क्लाइंट आईडी एंड एलटीआई आर वर नॉट अ गुड फीचर, सो वी जस्ट गोना रन दिस. हम लोग फीचर्स के अंदर ये 3 कॉलम ले रहे हैं और टारगेट के अंदर हम लोग ले रहे हैं डाटा डॉट डिफॉल्ट. ऑलराइट, सो लेट जस्ट व्यू दिस फीचर्स डॉट हेड. वी आर हैविंग these values and wait and just run target dot head. ओके, तो ये बिल्कुल हमारे पास ज़्यादातर जीरो वैल्यूज हैं, तभी यहाँ पे हमारे पास एक ही वन आ रहा है. बिकॉज इफ वी वन. ऑलराइट, सो नेवर माइंड, we'll go further and we'll try to visualize our entire data set. अब अगर हम यहाँ देखें, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग डाटा डॉट डिफॉल्ट के अगेंस्ट तीनों फीचर्स को स्कैटर प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन क्योंकि हमारे पास 3 फीचर्स हैं, हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, एंड व्हेन वी आर विजुअलाइजिंग 3 कॉलम्स अगेंस्ट सिंगल वाई, तो देन वी गोना हैव दिस टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन. एक हमारे पास तरीका ये होता है कि हम लोग फेसनेट यूज़ कर लें फ्रॉम सीबॉर्न, एंड वी कैन print multiple graphs. We can do it in Matplotlib as well, and we can do in C1 as well. That we're gonna print multiple graph कि हमने एज का एक अलग ग्राफ बना दिया, लोन का हमने अलग ग्राफ बना दिया, एंड इनकम का हमने अलग ग्राफ बना दिया. बट राइट नाउ आई एम जस्ट मेकिंग अ सिंगल ग्राफ. और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि फॉर अ ह्यूमन देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. कि प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए, दैट दिस ऑरेंज इज रिप्रेजेंटिंग एज. ओके, अब यहाँ पे जो ग्रीन है ना, बिकॉज आई हैव स्टडीड द डेटा एंड यू विल आल्सो नो इट. आप यहाँ पे अगर डिफरेंट कलर पास कर लो तो उस तरीके से भी आपको मालूम हो सकता है, या लेबल पास करके भी आप मालूम कर सकते हो इन फ्यूचर. जो ग्रीन डाटा है ये वो है जो लोन है, एज वी हैव सीन इन द डाटा. बहुत मिनिमल अमाउंट जो था वो एज का था, फिर मॉडरेट अमाउंट लोन का था, और जो सबसे हाई अमाउंट चल रही थी वो हमारी सैलरीज की चल रही थी या इनकम की चल रही थी. सो इनकम is pretty high, loan is little moderate, and age is of course the same. अच्छा, अब हम यहाँ अगर देखें तो हमारे पास या तो 0 पे हैं तमाम वैल्यूज़, या फिर 1 पे हैं तमाम वैल्यूज़. अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास तमाम वैल्यूज़ 0 पे हैं और तमाम वैल्यूज़ 1 पे हैं, तो या तो हमारे पास सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं, इधर इज गोना बी 0 और इधर इज गोना बी 1. या तो वो डिफ़ॉल्टर है या फिर वो डिफ़ॉल्टर नहीं है. अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये देखा कि अगर इंसान को मालूम हो कि कौन सा बंदा किस कैलकुलेशन के मुताबिक डिफ़ॉल्टर हो या डिफ़ॉल्टर ना हो, तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई इन अ सिंपल केस. हाउ? जहाँ पे सबकी सेम सैलरीज हैं, उधर भी सबकी सेम सैलरीज हैं, ऑलमोस्ट सेम रेंज ऑफ लोन है. आपको कैसे मालूम होगा दैट हाउ विच पर्सन इज गोइंग टू बी डिफॉल्टर इन द फ्यूचर ऑन दिस इनकम, एज एंड लोन, और कौन सा बंदा डिफॉल्टर नहीं होगा? आप यहाँ से देखिए, अगर हार्ड कोड करने भी जाए पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दोज पर्सन. लेकिन अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल पे जाएं, सो लेट्स सी मशीन लर्निंग कितना अच्छा रिजल्ट ले सकता है हमको. अब उस रिजल्ट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे टेस्ट सेट के अंदर एंड ट्रेन सेट के अंदर. इन ट्रेन सेट वी विल ट्रेन अ मॉडल फॉर ट्रेन सेट के अंदर हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे, और टेस्ट सेट जो कि एक सेपरेट डेटा हम अलग से 25% 20% तोड़ कर रखेंगे. वी विल यूज इट फॉर टेस्टिंग अर मॉडल कि क्या वो उसको सही प्रेडिक्शन दे भी रहा है या नहीं. सो विल सी दैट इन द लास्ट. ऑलराइट, सो this cell is used there. I think accidentally use here. All right, we are now what we are doing right now, we are pre-processing the entire data set. आपकी मर्जी है करें या ना करें, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो वैल्यू 70,000 तक चली गई हैं ये सारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और स्केल हो जाए आपस में. कुछ वैल्यूज बहुत छोटी हैं, कुछ वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, कुछ वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो मैं उनको नॉर्मली स्केल करना चाहता हूँ. दैट इज़ व्हाई आई एम यूजिंग प्री-प्रोसेसिंग अ फंक्शन व्हिच इज स्टैंडर्ड स्केलिंग. आफ्टर स्टैंडर्ड स्केलिंग यहाँ पे मैं मिन मैक्स स्केलर यूज कर रहा हूँ तो नॉर्मलाइज द एंटायर डाटा सेट. ये वैसे स्टैंडर्ड स्केलिंग नहीं था. लेट मी यूज इट हियर, min max scaling. I also can make mistake, I am not a machine. So alright, feature train, feature test, target train, target test, train test split. Now we are here importing this function train test split, और उसमें हम पास कर रहे हैं features and target. Now if you already knew that कि feature train test split जो है एक ट्यूपल रिटर्न कर रहा होता है डेटा सेट को ब्रेक करके. अगर हम फीचर्स और टारगेट पास कर रहे हैं, so it's going to break the data set into 70 or 30% ratio.
और उसमें क्या हो रहा होगा कि हमारे पास फीचर्स 70% फीचर्स हमारे पास फीचर ट्रेन में चले जाएंगे और 30% फीचर्स हमारे पास फीचर टेस्ट में चले जाएंगे। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग टारगेट्स जो होंगे हमारे पास 70% टारगेट ट्रेन में चले जाएंगे, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग टारगेट्स हमारे पास जो 30% रह गए होंगे वो टारगेट टेस्ट में चले जाएंगे। ऑलराइट। Okay, someone asked me what is the purpose of confusion matrix. So we'll see that in the end. जब हम confusion matrix print करेंगे, I will explain in very detail. All right. अगर n हमने 3 रखा और सर्कल में 3 से ज़्यादा पॉइंट आ सकते हैं? नो, नेवर. इट कैन बी नेवर पॉसिबल कि सर्कल में 3 पॉइंट ज़्यादा आए। KNN बहुत कंजूस है, जितना आप नंबर देंगे उतना ही वो लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा. So don't worry about it. Explain extraction one again. All right, no issue. I'll do that. I think I've gone above. All right. So यहाँ पे हम इनकम, एज और लोन इसलिए ले रहे थे डेटा सेट में से बिकॉज दीज आर दी ओनली फीचर्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ऊपर जाएं, डेटा डेटा देखें, तुम्हारे पास क्लाइंट आईडी थी, इनकम थी, एज थी, लोन था, एलटीआई था, डिफॉल्ट था. एलटीआई मींस लोन टू इंटरेस्ट रेशियो. वी डोंट नीड इट राइट नाउ. हमारे पास ऑलरेडी लोन और इनकम है, तो हमें लोन टू इनकम रेशियो नहीं चाहिए. बट वी नीड इनकम, एज एंड लोन टू प्रिडिक्ट द डिफॉल्टर, जिससे हमें मशीन को ही मालूम हो सके भाई अगर इसकी इतनी इनकम है, इसका इतना लोन है और इसकी ये एज है, तो क्या ये डिफॉल्टर हो सकता है आगे जाके? नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज दिस एनालिसिस इन बैंक कि अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर लाइक मी, आई एम एट फॉर एग्ज्यूम कर लेते हैं, आई एम अ 20 years old person एंड आई एम गोइंग टू अ बैंक. मैं बैंक जा रहा हूँ एंड आई एम सेइंग कि आई एम अर्निंग $20,000 per month, sorry $20,000 per annum, and I want to take a loan for $8,000. So वहाँ पे प्रॉब्लम एनालाइज कर रही होगी कि ये इसकी एज है, ये इसकी लोन है, ये इतना लोन मांग रहा है और ये इतना इसका इनकम है, तो क्या इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देन इट विल बी यूजफुल. फिर उस पर बैंक खुद सोचेगा यार इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कैसा ना हो ये डिफॉल्टर बन जाए, क्या इसके पास इतनी चीज़ें हैं कि अगर ये डिफॉल्टर बन गया तो ये बैंक में रखवा सके या बैंक उससे हासिल कर सके इन द फ्यूचर. बैंक गुस्सा में तो नहीं जाएगा. फॉर एग्जाम्पल नाउ assume that I am a 45-year-old person. I have a earning of $200,000 per year. All right, and now I'm going for the loan for $10,000. अब जब मेरी अर्निंग ही $200,000 है, तो $10,000 अगर मैं इंस्टेंट लोन के लिए जाता हूँ, वो तो खैर मुझे इन दोनों फीचर पे प्रिडिक्ट करते ही दे देगा कि भाई इसकी अर्निंग अच्छी खासी है, he can pay back loan within a month or two. So he gonna give me $10,000 loan easily. But what if I ask $100,000? तो देन वो फिर प्रिडिक्ट करेगा भाई ये तो अपनी 6 महीने की तो सैलरी मांग रहा है, क्या इसको हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सो ये वो फीचर्स थे इनकम, एज, लोन. अब क्लाइंट आईडी थोड़ी वो फीचर होगा. फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है या ये स्टूडेंट बुरा पढ़ता है. तो इफ आई एम क्लासिफाइंग दोस टाइप ऑफ ग्रुप, अब उनका रोल नंबर से मुझे क्या है? मुझे तो उनकी इस चीज़ को देखना है कि वो कितना पढ़ते हैं, वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के अंदर, और वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी थ्योरी लर्निंग के अंदर, और कितनी स्कोरिंग उनकी प्रैक्टिकल में आ रही है और कितनी स्कोरिंग उनकी उसमें आ रही है. और ये एक एनालाइज होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई किसी स्टूडेंट ने 6 सेमेस्टर में इतने लिए, तो 8 सेमेस्टर तक उसकी जीपीए क्या होगी? किसी स्टूडेंट ने 3 सेमेस्टर तक इतने लिए कि 8 सेमेस्टर तक उसकी जीपीए क्या होगी? सो फॉर दिस टाइप ऑफ एनालिसिस हम वही फीचर यूज करते हैं जो हमारे फीचर्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हियर इनकम, एज एंड लोन. और टारगेट हमने क्या करना है, फीचर प्रिडिक्शन हमने क्या देनी है कि वो डिफॉल्टर है या नहीं है. दैट इज व्हाई वी राइट हियर डाटा डॉट डिफॉल्ट. मेरी मर्जी है, मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, बट इट्स अ सिंगल फंक्शन, सो आई मेड जस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डाटा. ऑलराइट, ओके, लेट्स गेट बैक टू दिस. और किसी को मजीद सवाल हो सो ही कैन आस्क बिफोर ट्रेनिंग द मॉडल. Alright, feature test, target train, target test, explain कर दें. Okay. How to set value of k in given code. This is something I'm gonna tell you after this explanation. तो असल अभी हम उसी चीज़ पे आ रहे हैं, that how to set value of k in given Python code. तो वो किस तरह में मालूम करना है वो भी आगे हम देखते हैं.
the optimal value for k जिससे हमारा मॉडल बिल्कुल परफेक्ट हो. Alright, someone asked a very different question. I'm not going to understand, I guess. अगर पॉइंट लाइन से 5 अगर पॉइंट लाइन से 5 है एक ही डिस्टेंस पर तो कैसे होगा? Any anonymous person, I cannot understand your question. अगर पॉइंट लाइन से 5 है एक ही डिस्टेंस पर तो कैसे होगा? I don't know what are you trying what are you saying? थोड़ा सा elaborate कर दो ताकि मेरे समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे दिमाग में इस सवाल को देख के 10 सवाल और आ रहे हैं. So I have published your question, तो सबके पास आ गया होगा, तो आप उसको दोबारा जो भी है वो बता दें सवालात क्या था. All right, feature train, feature test, target train, target test. We are using this technique from the very initial workshops, and what we do here, all right, यहाँ पे हम कर रहे होते हैं, for example, we are using here min max scalar to just normalize the data set, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, feature train, feature test, target test, train split and features target. क्या है ये, क्या इतनी बड़ी मैंने लाइन लिख दी, कर क्या रहा है ये? Now understand this. हमने फंक्शन यूज किया ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, जो कि हमने सबसे ऊपर इंपोर्ट किया था लाइब्रेरीज के साथ. बट इट्स डूइंग, हमने यहाँ पास किए फीचर्स कॉमा टारगेट. फीचर्स आर दी एक्स वैल्यूज एंड टारगेट आर दी वाई वैल्यूज. अंडरस्टैंड जस्ट लाइक दिस. टारगेट वो जो हमें प्रिडिक्ट करना है, फीचर्स वो जो हमारे इनपुट है. हम जो एक्स इनपुट देते हैं वही डिपेंडिंग वैल्यू मतलब वाई हमारे पास आ रही होती है. अगर हम मशीन लर्निंग का मॉडल स्प्लिट किए बगैर उसमें डेटा इनपुट करवा दें, मतलब अगर हम डेटा सेट दे दें मशीन लर्निंग को और उस पर ट्रेन कर दें पूरे डेटा सेट के ऊपर, फॉर एग्जांपल वी हैव 1000 वैल्यूज, 1000 वैल्यूज पे ट्रेन हो जाए. अब होता क्या है, इसको वही 1000 वैल्यूज आ गई. अब क्या पता आपका मॉडल ओवरफिट हो रहा हो या अंडरफिट हो रहा हो, आपको कैसे मालूम होगा? आप मालूम कैसे करते हो दैट यू हैव बिल्ड अ जनरलाइज्ड सॉल्यूशन? आप अपने डेटा को स्प्लिट करते हो इन 70 to 30% और 80 to 20% रेशियो. 70 to 30% और 80 to 20% हो, आपके पास एक सेट आता है जो कि ट्रेनिंग के लिए होता है और एक सेट आपके पास आता है जो टेस्टिंग के लिए होता है. ट्रेनिंग सेट के ऊपर आप अपना मॉडल ट्रेन करते हो. हम ज़्यादा रखते हैं इसलिए ताकि मॉडल को आसानी हो ट्रेन होने के अंदर, क्योंकि उसके पास डेटा ज़्यादा मिकदार में होगा. सो इट कैन बी इट कैन लर्न प्रीटी गुड इन प्रीटी गुड मैनर. टेस्ट सेट हम बाद में यूज़ करते हैं उसके मॉडल ट्रेन होने के बाद, क्योंकि मॉडल ने वो डेटा सेट देखा ही नहीं होता जो हमने टेस्ट सेट बना रखा होता है. जब मॉडल सीख लेता है तो फिर हम उसे चलो करते हैं, चलो भाई तुम्हारा इम्तिहान है, जरा देख के बताओ कि क्या तुम सही प्रिडिक्ट करते हो या नहीं प्रिडिक्ट कर रहे हो. अगर जितना वो सही प्रिडिक्ट कर रहा होता है वो हमारा एक्यूरेसी रेट बढ़ता चला जाता है. जितना वो गलत प्रिडिक्ट कर रहा होता है हमारा एक्यूरेसी रेट गिर जाता है. अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्निंग मॉडल कभी कभी बायस हो जाता है कि वो खास तौर पर आपका डेटा सेट बहुत कम हो कि वो मेमोराइज कर लेते हैं आपके डेटा पॉइंट्स को. अब जब मेमोराइज कर लेते हैं ना तो एक्यूरेसी कभी कभी 1.0 भी आ जाती है, मतलब 100% एक्यूरेसी भी आ जाती है. अब जब 100% एक्यूरेसी आ गई तो आपको लगेगा कि आपका मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर डेटा कहीं और से आ रहा होगा ना, वहाँ पे शायद 50% भी एक्यूरेसी आपको सही ना आ रही हो, क्योंकि आपका मॉडल ओवरफिट हुआ हुआ होता है. आपके मॉडल ने वो वैल्यूज याद कर ली होती है कि भाई जब यहाँ पे वैल्यूज आए ना तो मैंने यही जवाब देना है. ये बायस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. उसके लिए आप टेस्ट सेट अलग से यूज़ करते हो और फीचर सेट अलग से यूज़ करते हो. फॉर व्हाट वी आर यूजिंग दिस फंक्शन हेयर. अब अगर कोई चीज़ ये मेरी दोबारा सुन ले सो डोंट वरी, हर किसी को साथ लेकर चलना मेरी ड्यूटी है. ऑलराइट, सो वी आर यूजिंग हेयर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. उसके बाद हम इनपुट दे रहे हैं फीचर्स और टारगेट का, एंड इट्स रिटर्निंग द ट्यूपल. व्हाट इज ट्यूपल? पाइथन अगर आपको आते हो, आपको ट्यूपल का अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो ट्यूपल रिटर्न कर रहा है इन ऑर्डर कि पहले फीचर ट्रेन रिटर्न कर रहा है, मतलब फीचर्स के अंदर से एक ट्रेन सेट रिटर्न कर रहा है और फीचर्स के अंदर से एक टेस्ट सेट रिटर्न कर रहा है. फिर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट में से टारगेट ट्रेन क्या कहते हैं उसको प्रेजेंट कर रहा है और फिर टारगेट टेस्ट ही प्रेजेंट कर रहा होता है. अब क्या टारगेट की वैल्यूज फीचर की वैल्यू से डिफरेंट होगी? नहीं, वैल्यूज वही कॉरस्पॉन्डिंग आएगी. अगर फीचर के पास हमारा इतना डेटा सेट आया है तो टारगेट के भी डेटा सेट उतने ही हमारे पास आएगा और उन्हीं वैल्यूज का टारगेट हमारे पास मौजूद हो रहा होगा. सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. आई होप दैट आई हैव मेक सम सेंस and we can move further. Can we use a for loop and check multiple value of k to determine which value gets optimal output? Of course, if you are using my GitHub, so you can already know that. और हम आगे जाके यही करेंगे, so don't worry. Alright, he said that I think he's asking if 5 points are on the same distance, then how to select 3 points.
इफ k इज इक्वल टू 3। फॉर एग्जांपल चलते हैं के की डायग्राम पे, सिंपल विजुलाइजेशन पे। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट, हमने ले दिया k इज इक्वल टू 3। अगर इसी लाइन के अंदर मजीद 2 पॉइंट्स होंगे तो वहाँ पे थोड़ी जाएगा, जैसे उसको 3 नियरेस्ट पॉइंट्स मिलेंगे वहीं पे सर्कल बनाकर खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। जितना पॉइंट्स आप देंगे वो उतने ही बड़ा सर्कल बनाएगा, उससे ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं बनाता। बहुत रेयर केस होता है कि जहाँ पे वो पॉइंट आप दे रहे हो, जहाँ पे वो पॉइंट दे रहा हो तो वहाँ पे एक ही सर्कल के अंदर जबरदस्ती 2 वैल्यूज आ रही होती हैं, तो के नियरेस्ट नेबर क्या करते हैं, अपना रैंडम पॉइंट को चेंज कर लेता है, मतलब वो गलत जगह है। फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पर आ गया बीच में, इधर इसने अपना पॉइंट डाल दिया, अब वो यहाँ पे सारी उसके पास एक ही क्लास की वैल्यूज आ जाएंगी, तो उसका मतलब वो गलत जगह आया, तो वो फिर अपनी जगह चेंज करता रहेगा, वो जगह चेंज करते रहता है जब तक उसके पास कोई ऑप्टिमल लोकेशन ना आ जाए ग्राफ के अंदर। सो ये सारा आपका मॉडल खुद कर रहा होता है मशीन लर्निंग का। All right. Just heading towards training our machine learning model. All right. So we are using here k nearest neighbor classifier, and just for an instant, कुछ लोग ये भी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमने लिया कि 3 हमारे पास क्लासिफायर्स हैं, 3 हमारे पास नेबर्स हैं, तो आप k की वैल्यू 3 डाल देते हैं, देन वी गोना ट्रेन दिस मॉडल। बट वी आर डूइंग हियर के मॉडल इज इक्वल टू k नेबर्स क्लासिफायर और n नेबर्स की वैल्यू दे दी 3, फिट मॉडल कर दिया। हमने इसमें वैल्यूज ले ली हैं, ज़रूरत नहीं होती है आप सिर्फ मॉडल डॉट फिट भी ले सकते थे, लेकिन ये भी एक तरीका होता है दिखाने के लिए कुछ नया। सो मॉडल डॉट फिट के अंदर हमने फीचर ट्रेन डाल दिया है और हमने टारगेट ट्रेन डाल दिया है। मॉडल ट्रेन हो गया, अब हमें देखना ये कि क्या मॉडल कितना एक्यूरेट गया है। तो हमने क्या लिया, प्रिडिक्शंस इज इक्वल टू फिट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फीचर टेस्ट। फीचर टेस्ट क्या है अगर किसी को मालूम हो, तो फीचर टेस्ट वो टेस्ट सेट है जो एक्सरसाइज हमने उसको नहीं दी थी ट्रेन होने के लिए। अब जब हम इसको वो वैल्यूज देंगे जो उसको हमने नहीं दी थी, तो प्रिडिक्शंस के अंदर हमारे पास एक तरीके का वाई टारगेट टेस्ट बन जाएगा, लेकिन वो टारगेट टेस्ट नहीं कहलाएगा, वो टारगेट एस्टिमेटेड टारगेट कहलाएगा। फिर जो वैल्यूज हमारे पास प्रिडिक्शंस में आ रही होंगी फीचर टेस्ट से प्रिडिक्ट करने के बाद, हम उन प्रिडिक्शन की वैल्यूज को टारगेट टेस्ट से कंपेयर करेंगे कि मॉडल ने कितना एक्यूरेट काम किया है और कितना एक्यूरेट काम नहीं किया। सो इफ यू जस्ट हेड फर्दर, इसको भी छोड़ दें, ये मिस्ट्री है, इसको बाद में देखेंगे हम। सो जस्ट हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी स्कोर प्रिंट करते हैं। सो ये वही है जो हमने कल किया था, जस्ट फॉर योर ईज मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ दैट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स या एरर मैट्रिक्स एक ही बात है। यहाँ हमने लिख दिया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और ये बहुत इजी है। आप अगर कभी किसी अपने क्लाइंट को भी समझाना चाहोगे ना, क्लाइंट को आप कैसे समझाओगे कि भाई मेरा मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उसको अपना कोड थोड़ी दिखा दोगे। कोड दिखा दोगे तो फिर मसला ही सारा खत्म हो गया, वो आप ही का कोड कॉपी करके आपको पैसे थोड़ी देगा वापसी। तो आप क्या कर रहे हो, तो आप उसको फिर ये विजुलाइजेशन दिखाते हो कि भाई मेरा मैट्रिक्स इतना अच्छा काम कर रहा है, आप दे दो पैसे बस अब। सॉल राइट, दैट्स जस्ट जोक। तो एनीवेज यहाँ पे मैं नेक्स्ट एंड डाल दूँ। ऑलराइट, तो यहाँ हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट हो चुका है, और यहाँ पे अगर हम इसकी विजुलाइजेशन कर लें एक दफ़ा, ये ट्रेन मॉडल पे हुआ है। ऑलराइट, लेट मी सी। ओके, तो ये ट्रेंड हमारे पास एक्यूरेसी आई है 0.984। अभी तो इतफाक से था कि मैंने के की 3 डाल दी और मैंने पहले ट्राई भी नहीं करी थी, पहले मैंने 32 ट्राई की हुई थी, तो मैंने के की 3 डाली है और मेरे पास उसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ पे आपको लिख रहा होगा 4.2 e प्लस 02। सो डोंट वरी, इट्स मीन कि ये 422 वैल्यूज है। ये क्या हो रहा है बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कैलकुलेटर यहाँ पे आएगा, ओके नहीं गूगल भी खोल लेता है। ऑलराइट, कैलकुलेटर। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम 4.2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ई है, आई डोंट थिंक सो कि वही वाला ई है। सो यहाँ पे 10 नहीं है। सो बेसिकली क्या कर रहा है कि वो 10 की पावर 2 है, जो ई प्लस 02 है ना, वो 10 की पावर 2 है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये लिखें, सॉरी सॉरी, कैंसिल 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 कैंसिल, ओके, 4.2
ओके मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो ये हमारी वो वैल्यू है जिसको हम अगर देखें तो हमारे पास बन रही है 420। अब ये 422 हो, 420 हो, 425 हो, तो ये सारा इसी यही रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि भाई 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 है। अब आई डोंट नो व्हाई सीबॉन ने इतनी छोटी वैल्यू के ऊपर भी यही यूज़ किया हुआ है। तो इसको कोड को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट व्हाट वी आर डूइंग है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मैंने हीट मैप पहले बनवाया। सो व्हाट इट्स डूइंग हियर कि हम यहाँ पे सीबॉन यूज़ कर रहे हैं। सीबॉन को यूज़ करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप पहले मैटप्लॉटलिब, नंपाई और पांडास को इंपोर्ट कर लें, बिकॉज सीबॉन इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन है। वो क्या कर रहा है कि जहाँ आपको मैटप्लॉटलिब में मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ती है, आपको सीबॉन में लिखनी नहीं पड़ती। हम मैटप्लॉटलिब में एक छोटा सा प्लॉट बनाने जाते हैं तो 3-4 लाइन उसमें लिखनी पड़ जाती है, लेकिन सीबॉन के अंदर से एक लाइन में हमें इतना बेहतरीन किस्म का प्लॉट दे दिया। Alright, so what we are doing here, we are passing the confusion matrix, और confusion matrix itself पूरा का पूरा matrix रिटर्न कर रहा होता है, तो उसके बाद पूरा matrix आ गया ऑटोमेटिकली। और टारगेट टेस्ट दे दिया हमने, इसमें प्रिडिक्शन दे दिया। ये बिल्कुल वही है जो हम यहाँ दे रहे हैं। आपकी मर्जी है इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के और फिर यहाँ दे दें, या फिर डायरेक्ट ऐसी पास कर दें। एनोटेशन हमें 2 कर दिया, हमारे पास एनोटेशन आ गई, और हमने सी में लिख दिया ब्लूज। नाउ व्हाट इज मीन बाय ब्लूज के जितनी भी हमारे पास वेरिएशंस आ रही है तो उसकी कलर इंटेंसिटी भी चेंज उसके साथ साथ। फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग मैक्सिमम ऑफ 430 या 450 वैल्यूज, तो वो तमाम वैल्यूज को एक ब्लू के शेड्स 255 शेड्स ऑफ ब्लू पे स्केल कर देगा। तो जितनी ज़्यादा वैल्यूज होंगी हमारा ब्लू का कलर उतना ही डार्क हो रहा होगा। तो उससे ये खूबसूरती अच्छी आ जाती है। अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो लेट्स सी के C1 किस तरह का ग्राफ शो करेगा। तो अगर आप इस तरह का ग्राफ देखें तो आपको देख के कुछ हो जाएगा यार ये कैसा ग्राफ है। दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन हियर, आई हैव मेंशनड ब्लूज हियर। देख लीजिएगा नेट पे बहुत सारे कलर होते हैं, रेड्स होंगे, जैसे मर्जी आपको चाहिए हो आप उस तरीके से कलर यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग ब्लू हियर। अब यहाँ पे हमारे पास कोरिलेशन मैट्रिक्स में क्या आ रहा है कि भाई 420 हमारे पास वो वैल्यूज हैं जो 2 प्रिडिक्ट की थी उसने और ट्रू थी। अच्छा मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ही डाली थी, यहाँ डायग्राम खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को उससे आसानी हो जाए। बल्कि जो कल कल पढ़ाई थी वो डायग्राम डायरेक्ट वही खोल देता हूँ। और राइट जस्ट वेट अ मिनट, दैट्स माय वेरी ओल्ड फोटो एंड जस्ट गोइंग टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वेट अ सेकेंड। ओके ये हमारी कल वाली वर्कशॉप है तो इसके अंदर मैंने पिक्चर एम्बेड की हुई थी। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन दिस पिक्चर, व्हाट वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर सॉरी, फॉर एग्जांपल उसने कितनों को पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया। भाई उसने बोला कि इसने जितनों को पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया उसमें इतने एक्चुअली पॉजिटिव थे और उसमें इतने नेगेटिव थे। तो फॉर एग्जांपल जितनों को उसने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया और जितने वाकई पॉजिटिव थे वो यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस कोरिलेशन मैट्रिक्स में अपन नंबर देखें तो 172 है। इट मीन्स के यहाँ पे हमारे पास इतने ही पॉजिटिव थे और इतने ही पॉजिटिव प्रिडिक्ट हुए। अगर हम यहाँ देखें तो 37 जो हमारे पास आ रहा है, इतने हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव थे, मीन्स के इतने हमारे पास नेगेटिव थे और इतनों को उसने पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर दिया, जो कि गलत है। जो थे ही 0 उसको भी वो 1 प्रिडिक्ट कर रहा है। नीचे अगर हम आ जाते हैं, इतने हमारे पास पॉजिटिव थे थर्ड वाले के अंदर, इतने हमारे पॉजिटिव थे, लेकिन उसने उसको क्या प्रिडिक्ट कर दिया, नेगेटिव प्रिडिक्ट कर दिया। मतलब इन इसकी और इसकी वैल्यूज हमारे पास सबसे कम होनी चाहिए। वैल्यूज किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी जो पॉजिटिव हैं और जो 2 नेगेटिव्स हैं। मतलब जो वाकई में नेगेटिव थे और मॉडल ने भी उनको नेगेटिव ही प्रिडिक्ट किया। सो बाय दिस वी आर ऑब्जर्विंग कि हमारा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है इन कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सो इफ यू सी हियर इन आवर एरर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमारे पास इस दफ़ा बहुत कम वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप यही एल्गोरिथम यूज़ करें कल वाला डेटा सेट पे, आप यहाँ देखेंगे कि कल वाले डेटा सेट में हमारी 0.75 एक्यूरेसी आ रही थी। आज चूँकि एक्यूरेसी ज़्यादा आ रही है तो वो कल वाले डेटा सेट पे भी इतनी ही एक्यूरेसी लेकर आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स बहुत कम है, 2 है, 6 है, जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इतने अच्छा इसने अपने मॉडल को ट्रेन किया जस्ट ऑन द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 3। अगर हमें ये मालूम करना हो कि सबसे बेहतरीन मॉडल कौन सा होगा, सबसे अच्छी एक्यूरेसी किस पर आएगी, तो उसका तरीका क्या होता है कि आप
लूप लगा देते हैं और 100 दफ़ा या 50 दफ़ा आप स्पेसिफिक रेंज मेंशन कर देते हैं और उतनी ही दफ़ा ना आप क्रॉस वैलिडेशन कर रहे होते हैं। क्रॉस वैलिडेशन का मतलब ये होता है आप सारी एक्यूरेसी को कंपेयर करते हैं कि किस के नियरेस्ट नेबर पे सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आई है। सो फॉर बिफोर गोइंग टूवर्ड्स ऑप्टिमल के वैल्यू में ज़रा देख लूँ Q&A में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना आया वो। राइट, ऑलराइट। सो उसने दोबारा क्वेश्चन किया मुझसे दैट फॉर एग्जांपल इफ यू सेट k इज इक्वल टू 3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेम इन दिस केस व्हाट हैपेंड देयर। सो एज आई हैव टोल्ड कि ऐसा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर ये वैल्यूज आ रही हैं तो वो क्या कर रहा है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इसमें एक जगह पॉइंट डाल दिया, रैंडम पॉइंट, अभी ब्लू पॉइंट ना रैंडम किसी जगह लगा दिया। अगर ऐसा हुआ कि सेम इक्विवेलेंट डिस्टेंस के ऊपर उसके पास सेम वैल्यूज आ रही हैं तो क्या करेगा वो दो क्लासेस को देखते हुए थोड़ा सा अपने रैंडम पॉइंट को मूव कर लेगा और फिर सर्कल ड्रॉ करेगा ताकि मेरे पास उतनी ही वैल्यूज आए जितनी वैल्यूज मेरे अंदर पैरामीटर इनपुट किए हैं। तो दो क्लासेस के दरमियान के नियरेस्ट नेबर खुद ही रैंडम पॉइंट मूव करते रहता है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, वो उतने ही पॉइंट देगा जितने पॉइंट्स आप डालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2000 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इसमें से हम लोग आई गेस 1400 पॉइंट्स ट्रेन कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो अगर हम इसको मजीद जाएं और टेस्ट करें, अच्छा हीट मैप दोबारा समझा दें। लेट मी टेल यू अगेन, हीट मैप इज नथिंग, बस हीट मैप पे हम क्या कर रहे होते हैं कि मैट्रिक्स होता है ना हमारे पास, तो उस मैट्रिक्स को हम प्रिंट कर रहे होते हैं। नाउ मैट्रिक्स कैन बी 2x2, 3x3, 4x4, जितना बड़ा मैट्रिक्स हो हम उसको टोटल रेशो के मुताबिक कलर मैप कर रहे होते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा नंबर होता है वो ज़्यादा उसका कलर भी दिखा रहा होता है और खूबसूरती भी आ रही होती है। तो ये वही मैट्रिक्स है जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास आया, जो अगर आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स समझ में आ गया तो बस ये वही मैट्रिक्स इनपुट दे रहा है अपने अंदर। यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे एक वेरिएबल डाल दें उसको स्टोर करा के, एन और ट्रू दे दिया तो हमने हमारे पास एनोटेशंस आ गई और सी मैप ब्लूज लिख दिया तो मतलब हमारे पास ब्लू कलर्स आ रहे हैं और इस तरीके से हमारा हीट मैप विजुलाइज हो गया। नाउ गोइंग टूवर्ड्स लास्ट पार्ट, फाइंडिंग ऑप्टिमल के वैल्यू। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट एक एम्प्टी लिस्ट लेनी है, किस नाम से? क्रॉस वैलिड स्कोर्स। हम यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे क्रॉस वैलिड स्कोर के नाम से और तमाम जितने भी स्कोर्स हमारे पास आए होंगे वो हम इसमें अपेंड करते चले जाएंगे। फिर जिस नंबर पर सबसे ज़्यादा हमारे पास वैल्यूज आ रही होंगी हम वही वैल्यू यूज़ करेंगे किसके लिए? अपनी आई मीन उसके लिए, एरर मैट्रिक्स के लिए, सॉरी के नियरेस्ट नेबर के पैरामीटर के लिए कि के की वैल्यू हम क्या दें। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कोड। यहाँ पे हमने एम्प्टी लिस्ट ले ली क्रॉस वैलिड स्कोर के नाम से, दैट इन नेक्स्ट देन इन 4k इन रेंज 1 to 100। आपकी मर्जी, आप 100 डालें, 10 डालें, 5 डालें, ये हम देखते हैं किस तरह डालते हैं, किस पे कितनी अच्छी चेकिंग कर रही है। 100 सही है, 2000 डेटा सेट के लिए 100 भी सही है, लेकिन 1000 मत कर दिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। लेकिन 100 भी बहुत ज़्यादा है बट सही है 100। ओके, हम 100 डाल के देखते हैं बट वी आर डूइंग अगेन देन इन के एन एन वेरिएबल। हम यहाँ पे मॉडल नेम यूज़ नहीं कर रहे, वाई? बिकॉज हमने ऊपर ऑलरेडी मॉडल यूज़ कर लिया, वो उस मॉडल को ख़राब कर देगा। इट इज़ वाई वी आर यूजिंग अनदर नेम हियर, के एन एन। के एन एन इज इक्वल टू के नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर, के नियरेस्ट क्लासीफायर, और यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी के नेबर्स की इज इक्वल टू के। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू वही है जो हमारे पास लूप में चल रही होगी फ्रॉम 1 to 100। पहले 1 डालेगा, वो 2 डालेगा, 3 डालेगा एंड गोज टू द एन 100, 100 तक जाएगा और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। देन वी आर यूजिंग अ फंक्शन क्रॉस वेल स्कोर जो कि इसी का ही हमने इंपोर्ट किया है साइकिल लेंथ से। इफ यू गो अबव और द इंपोर्टेंट लेवल सेक्शन, तो स्कोर इज इक्वल टू क्रॉस वैलिड स्कोर और यहाँ पे हम पास कर देंगे मॉडल जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा है। विच मॉडल? के एन एन। यहाँ पे हम मॉडल लिखते हैं लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी हम अलग से मॉडल बना रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे हमने के एन एन लिख दिया जो क्या यहाँ पे हमने ऊपर बनाया है। एंड देन वी विल पास इंटायर फीचर्स, वी विल पास टारगेट, we will pass CV is equal to 10, and then we will pass scoring is equal to accuracy. CV is equal to 10, मैं भूल गया क्या होता है to be very honest, but as far as I know that it
सर्कुलेट दिस 10 टाइम्स टू ईच के वैल्यू, 10 दफ़ा वो देख रहा होता है दैट व्हाट इट हैज प्रिंटिंग सही भी है वो नहीं है, जो मॉडल ट्रेन हो रहा है वो सही भी है नहीं है, एज फार एज आई नो। इफ आई एम रॉन्ग सो यू कैन करेक्ट मी ऑन सेट बाय जस्ट सीइंग डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज हर बंदा भूल सकता है, वाई ओनली मी। डीप लर्निंग पढ़ पढ़ के मशीन लर्निंग इतनी याद है बिकॉज डीप लर्निंग ज़्यादा इन्वॉल्व है मेरे हेड में। All right, so cross valid scores dot append scores dot mean. What we are doing here right now, जो हमने ऊपर एक लिस्ट बनाई थी क्रॉस वैलिड स्कोर के नाम से, अब हमारे पास हर दफा स्कोर में एक नई वैल्यू आती जा रही है। जब जब नई वैल्यू आएगी स्कोर के अंदर वो हम लोग के अंदर अपेंड कर देंगे। नहीं तो ये रन करने के बाद मैं आपको लिस्ट भी प्रिंट कर सकता हूँ, वो लिस्ट ये तो 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 99 तक, क्योंकि 100 एक्सक्लूसिव होता है तो 1 से लेकर 99 तक लिस्ट में वैल्यूज होंगी। हमने उस तमाम नंबर यहाँ पे क्रॉस वेट स्कोर्स में प्रिंट। नाउ व्हाट वी विल डू, वेट ऑलराइट, व्हाट विल डू, अच्छा वो नंबर्स प्रिंट नहीं होंगे, 1 मिनट सॉरी फॉर दैट, वो एक्यूरेसी जो होगी स्कोर्स की वो प्रिंट हो रही होगी, मतलब इसके अंदर लिस्ट के अंदर लाइक किसी में आ रही है 0.5, किसी में आ रही है 0.9, किसी में आ रही है 0.8, किसी में आ रही है 0.7, तो फ्रॉम 0 टू 100 तक वो तमाम वैल्यूज हमारे पास इसी तरह की एक्यूरेसीज आ रही होंगी। फिर हम क्या करेंगे, हम क्या मालूम करेंगे कि हम np डॉट आर्ग्यूमेंट मैक्स यूज करेंगे कि इस पूरी लिस्ट के अंदर जिस लोकेशन पर सबसे मैक्सिमम एक्यूरेसी हमारे पास आ रही है उसका आर्ग्यूमेंट रिटर्न कर दो। कितना सिंपल बात है, मतलब मेरे पास एक लिस्ट है, या यूँ समझ लें कि मेरे पास एक बस है और उस बस के अंदर बहुत सारे बंदा सवार हैं। उस बस में जितने भी 100 बंदे हैं वैसे सबसे बड़ी उम्र का जो बंदा है वो किस सीट पे बैठा है वो मुझे बता दो। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो एक्यूरेसी हमारे पास आ गई है वो किस पोजीशन पर सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी हमारे पास आ रही है उसकी लोकेशन हमें उसकी आर्गुमेंट लोकेशन हमें पास कर दो। यहाँ पे अगर हम इसको रन करें, ये पहले का रन हुआ है, लेट मी रन दिस अगेन। So it's gonna take 5 to 6 seconds in Colab, but maybe take 2 to 3 minutes in your system. All right, so it's giving me again 32, which is pretty high number. I don't know why it's giving 32. तो लेट्स सी कि 32 पे क्या प्रेडिक्शन चेंज होती है या नहीं होती। ऑलराइट, सो हम अब 32 ये वैल्यू हमारे पास जो आ गई है हम ऊपर जाएंगे और अब मॉडल को ट्रेन करेंगे 32 के वैल्यू से। हमने कर लिया अपना मॉडल ट्रेन एंड नाउ वी विल प्रिंट दिस। ऑलराइट, सो ये तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया इत्तेफाक से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 10 वैल्यूज़ आ रही हैं। आई फॉरगेट कि हमारे पास पहले कौन सी क्या एक्यूरेसी आ रही थी, इत्तेफाक से हमें याद नहीं रहा, तो हम कंपेयर कर लेते। सो अगर आपको याद हो तो ज़रूर मेंशन करें मुझे। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक्यूरेसी आ रही है 0.98 अकॉर्डिंग टू दिस कि ये सबसे अच्छा के नियरेस्ट नंबर है, और 2000 वैल्यूज़ हमारे पास, तो 32 इज नॉट अ बिग नंबर अगेंस्ट 2000। तो अगर हम इसको लिमिट डाउन और लेट्स सी दिस, अभी क्यों कर रहे हैं हम ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी 50 के ऊपर 32 ही दे रहा है बिकॉज 32 50 से कम होता है। ऑलराइट, गो लेस देन 25। नाउ इट्स गिविंग 18। 32 का बिल्कुल आई गेस ऑलमोस्ट हाफ है, कंप्लीट हाफ नहीं है। ओके 18 से ट्रेन करते हैं इसको, और ट्रेन करने के बाद जस्ट प्रिंटिंग दिस एरर मैट्रिक्स। अब हमारी एक्यूरेसी और भी बढ़ गई है, 0.986 हो गई है। वाओ, ऑल राइट, अब दोबारा चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे उसको लिखते हैं 10, और सॉरी यहाँ पे 10 लिखना था ताकि हमें बताया कि 10 की रेंज में सबसे बेस्ट कौन सा है। अभी बोल रहा है 8 सबसे बेस्ट है, चलो सही है भाई 8 डाल लेते हैं, मान लेते हैं थोड़ी। 8 डाल दिया हमने, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट मतलब वहीं अराउंड चल रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट स्केल पे वैल्यूज चेक क्यों करी,
चेक मैंने इसलिए करी, वैसे तो हमारे पास डेटा सेट आज बहुत सिंपल है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स डेटा सेट हमारे पास आ जाता है तो हमें इसमें भी खदशा होता है कभी कभी कि मॉडल ओवरफिट ना हो रहा हो। अब होता क्या है कि जब हम यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं ना के की ऑप्टिमल वैल्यूज, हम यहाँ चाहें तो फीचर अंडरस्कोर ट्रेन दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या होता है हम लोग यूजुअली पूरे पूरे कॉलम पास करते हैं। अब वो तो दे रहा होता है पूरे पूरे कॉलम, लेकिन मॉडल को तो हम उससे चेक करते हैं जो हमने दिया ही नहीं होता उसको, क्योंकि मॉडल में हम देते हैं जस्ट ट्रेन सेट और टेस्टिंग करवाते हैं उसके टेस्ट सेट से। तो अक्सर ये फर्क आ सकता है। तो अगर आप यहाँ पे लिख भी दें ट्रेन, सो नेवर माइंड, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ट्रेन यहाँ लिख देते हैं और अब भले आप इसको देते हैं 100 वैल्यूज। ऑलराइट, व्हाट एरर इज गिविंग इट मी? फीचर्स अंडरस्कोर ट्रेन इज नॉट डिफाइंड बाय मैन। ओके, इट्स फीचर ट्रेन, मैंने एस एक्स्ट्रा लगा दिया, सॉरी। ऑलराइट, स्टिल टेकिंग सम टाइम। अब जाके दिया ना उसने 18 वैल्यू। अब ये क्या था, हमने उसको पूरा का पूरा डेटा सेट दे दिया, जबकि यूजुअली लोग पूरा का पूरा डेटा सेट ही दे रहे होते हैं। लेकिन अभी अगर हमने उसको फीचर अंडरस्कोर ट्रेन दिया और टारगेट अंडरस्कोर ट्रेन दिया, वो उसी पॉइंट पे लाया जहाँ हमारे पास प्योर एक्यूरेसी आ रही थी। अगर हम वापस ऊपर जाएं, उसको कर दें 1 8 एंड लेट्स री रन दिस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करूँ तो मैं बता देगा कि सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं आपकी बातों से, इतना घुमाए मत। सो यहाँ पे हमारे पास 425, 07 और 68 हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं और एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ गई हमारे पास। और इसमें हमें ये खदशा नहीं है कि ये मॉडल हमारा ओवरफिट हुआ हुआ है। खदशा क्यों नहीं है? खदशा इसलिए नहीं है बिकॉज आप यूँ कह सकते हो कि एक तो हमने मॉडल को ट्रेन उस पर किया जो ट्रेन सेट था, और चेक किससे करवा रहे हैं हम लोग? टारगेट सेट से। हम लोग टारगेट सेट को कंपेयर कर रहे हैं प्रिडिक्शन सेट से, जो उसने वैल्यू प्रिडिक्ट करी है। अब जब जो वैल्यू उसने प्रिडिक्ट करी है और जो टेस्ट सेट उसको कभी दिखाया ही नहीं, अगर वो उस पर 98% एक्यूरेसी दे रहा है, सो इट व्हाट इट मीन्स कि हमारा डेटा सेट ओवरफिट नहीं है, ये वाकई ही इतनी एक्यूरेसी दे रहा है। सो टुडे वी हैव बिल्ड अ वेरी गुड मॉडल। इन रियल लाइफ इतनी एक्यूरेसी आना अजाब हो जाती है बिकॉज डेटा सेट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड इन मेडिकल सिनेरियो इतनी ही एक्यूरेसी लानी होती है, वहाँ पे 0.99 भी कम सुनी जाती है कि मेडिकल सिनेरियो में आप एक पेशेंट की भी ज़िंदगी दाव पे नहीं लगा सकते without overfitting any model. All right. So I know that today's lesson was a bit confusing. इधर घूम घूम फिर के आ रहा था, बट आपको अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आया कि या कहीं पर मैं लैग कर गया ड्यू टू माई इंटरनेट कनेक्शन, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड आई एम रियली विलिंग टू टेल दिस अगेन। सो अगर किसी को कोई सवाल है तो शी कैन आस्क मी। सर कैन यू प्लीज ऑल एक्यूरेसी जस्ट टू सी दैट? ऑलराइट, बिल्कुल बता देते हैं आपको। स्कोर डॉट मीन क्यों लिया है ये भी बता दें। ऑलराइट, सॉरी फॉर दैट। ओके, टू 10 हम यहाँ पे 10 दफ़ा चेक कर रहे होते हैं एक ही पैरामीटर के। आ गया मुझे याद, हमने सी इक्वल 10 क्यों लिया था। हम यहाँ पे 10 दफ़ा, मैं सही बता रहा था पहले भी, सी इक्वल 10 हमने इसलिए लिया था कि हम 10 दफ़ा चेक करें। अब 10 दफ़ा ना पॉइंट पॉइंट का फर्क आता है। जब वो 10 दफ़ा चेक कर रहा होता है तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक समझने एक एरे बन चुका होता है या लिस्ट बन चुकी होती है विद डिफरेंट वैल्यूज। यहाँ पे हम उसका मीन निकाल लेते हैं ताकि हाँ, क्योंकि हमें सिर्फ सिंगल वैल्यू चाहिए होती है। नाउ गेटिंग टू दी फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर हमें सारे एक्यूरेसीज चाहिए हो तो हम उसको देख सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन सी व्हाट वी गोना डू, जस्ट कॉपी दिस नेम एंड जस्ट प्रिंट दिस हियर। कितना पॉइंट पॉइंट का फर्क है। इसने 1 के ऊपर भी इतनी अच्छी एक्यूरेसी प्रिंट करी है, अच्छा नहीं 1 पे नहीं था, सॉरी 1 पे भी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी प्रिंट कर दी है इसने। डेटा सेट ही ऐसा था कि मशीन लर्निंग को क्लासीफाई करने में मुश्किल ही नहीं हो रही है। 0.973, 973, 9713, तो ये हमारे पास तमाम वो एक्यूरेसीज हैं जो हमारे पास लिस्ट में मौजूद थी, और जिसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी हमारे पास आ रही, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, तो 0.98 की थी, कुछ इस तरह ही थी, जो कि ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे तो एनीवेज पॉइंट वाज कि ये सारी एक्यूरेसीज हैं। इसमें जो मैक्सिमम एक्यूरेसी जिस पोजीशन पे आ रही थी हमारे पास, वही पोजीशन रिटर्न हो रही थी। सो आई होप यू हैव गॉट इट कि किस तरीके से यहाँ पे एक्यूरेसी आई और किस तरीके से
हमने यहाँ पे ऊपर जो है मैक्सिमम एक्यूरेसी की लोकेशन मालूम करने की कोशिश करी, हमारा पे मैक्सिमम एक्यूरेसी की लोकेशन आ गई, एंड देन वी जस्ट प्रिंटेड द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड एक्यूरेसी. ऑलराइट, एनी फर्दर क्वेश्चन? ऑलराइट, so please tell how to make curve. Okay, okay, and further question please. एक साथ 3-4 सवालों का जवाब दे दूंगा. Let me see some more things as well. ऑलराइट, अगर 18 पे ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही थी तो 32 शो क्यों हुआ पहले? बिकॉज फर्स्ट वी वर इनपुटिंग द इंटायर डेटा सेट, वो इंटायर डेटा सेट के ऊपर लर्न करके 32 हमें दे रहा था. फिर हमने ट्रेन सेट दे दिया, उसके ऊपर उसने कहा कि नहीं यार 32 नहीं है, 18 ही है. फिर उसने हमारे पास 80 रिटर्न किया ऑप्टिमल वैल्यूज़ के अंदर. फिर हमने 18 जब यूज़ करा तो वाकई उस पर 0.2 का डिफरेंस था, आई गेस 0.1 का डिफरेंस था. तो इट वाज नॉट अ बिग डिफरेंस, बट इट्स अ ये कोशिश ये होती है कि अगर यूजुअली होता है ये कि क्या कभी कभी कि 32 या और 18 के ऊपर भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो, सेम वैल्यू आ रही हो. तो उसमें कोशिश यही होती है कि आप वो वैल्यू यूज़ करो जो सबसे पहले आ रही है, ज़्यादा वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती. ऑलराइट, एनी फर्दर क्वेश्चंस? ओके, समवन इज आस्किंग अबाउट रॉक कर्व. या रॉक कर्व भी ज़रूर देख लेंगे कल, आपको रॉक कर्व भी दिखा दूंगा कल. आई गेस हमारी सपोर्ट वेक्टर मशीन की नई बेस में से कोई दो में से कोई एक क्लास है, सो उसके अंदर मैं रॉक कर्व मेंशन कर दूंगा, तो आपको कल रॉक कर्व भी इंशाल्लाह समझा दूंगा. ऑलराइट, एनी फर्दर क्वेश्चन? थैंक्स फॉर सजेशन, इस तरह के सजेशन देते रहा करो. All right, sir, can you suggest further reference for SNS library to run? Okay, I will give you a reference. All right, any further questions? I'm not having any further question. All right, someone asked me a very good question that when to use KNN. अच्छा, KNN usually in real world scenario आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा. बट इफ़ वी टॉक अबाउट 1990s, क्योंकि मशीन लर्निंग तो 1970 में इन्वेंट हो चुकी थी और इम्प्लीमेंटेबल भी हो गई थी. बट व्हेन वी थिंक अबाउट कि उस वक्त इसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन थी, सो इट वाज अ सिंपल रिकमेंडेशन सिस्टम. KNN was usually used for simple recommendation system. जब नेटफ्लिक्स डेवलप हुआ था तो नेटफ्लिक्स का शुरू के 3 साल तक जो रिकमेंडेशन सिस्टम था वो KNN के ऊपर बेस करता था. सेम तो अमेजोन एक कंपनी है, और भी नोस, they were also using KNN if I'm not wrong for this recommending different movies or different books. अमेजोन की उस वाली अमेजोन की बात नहीं कर रहा जो आज बहुत बड़ी वेबसाइट बनी है फॉर सेलिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट अमेजोन जो सिर्फ किंडल के ऊपर बुक सेल की जाती थी. पहले अमेजोन की किंडल्स होती थी और उस पर उनका एक प्लेटफॉर्म था विच दे सेल ई बुक्स. तो उसकी जो रिकमेंडेशन सिस्टम थी वो अमेजोन यूज़ करता फॉर दैट, इट्स बट यूजिंग KNN. और जब अमेजोन प्राइम आया था तो स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल रिसेंटली तो अमेजोन प्राइम पहले डिजिटल फॉर्मेट में देता. पहले अमेजोन प्राइम जस्ट हार्ड कॉपीज प्रोवाइड करता था फॉर एनी सॉन्ग्स, मूवीज, कॉन्सर्ट, एल्बम्स और देयर आर मेनी थिंग्स. तो उसके लिए रिकमेंडेशन सिस्टम थी जो वेबसाइट से आप ऑर्डर करते थे. सो ऑल राइट, सो आज की अगर रेफरेंस से बात करें कि KNN किस लिए यूज़ होता है, सो आई डोंट थिंक सो कि KNN आज भी किसी रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है. देन व्हाई वी आर लर्निंग दिस? बिकॉज वी आर लर्निंग मशीन लर्निंग ताकि हम न्यूरल नेटवर्क्स को अच्छे तरीके से समझ सकें. क्योंकि ये जो स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ मशीन लर्निंग है ना, ये डीप लर्निंग में जाके इतनी ह्यूज अमाउंट में यूज़ हो रही होगी. ये KNN वहाँ पे 0.1% होगा डीप लर्निंग के अंदर, क्योंकि वहाँ पे न्यूरल नेटवर्क के अंदर इतनी सारी डेंस लेयर्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाएगा आपका. फिर आसानी से छोटी चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आते हैं. ऑलराइट, एनी फर्दर क्वेश्चन? How you set metrics values? All right. अभी रिकमेंडेशन के लिए क्या यूज होता है? As far I know, Netflix is currently using their own defined custom model
लेकिन नेटफ्लिक्स जो काफ़ी अर्से तक आई गेस 2010 या 2012 तक जो रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ करता है, जो कि सबसे बेहतरीन किस्म का रिकमेंडेशन सिस्टम ओपन सोर्स आज तक अवेलेबल है, वो एमनेस्ट के नाम से है। एंड वी गोना परफॉर्म दैट रिकमेंडेशन सिस्टम इन अ लास्ट वर्कशॉप, जो कि हमारा कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है। वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो आई होप कि आप लोग सारे उससे पहले पढ़ लो, क्योंकि इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट प्रोजेक्ट एज वेल। वो शायद 2 घंटे की क्लास होगी और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जो कि कॉम्प्लेक्स भी है, थोड़ा डिटेल्ड भी है, और प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट है वो। Okay, someone asked how you set matrix values. All right, brother और sister who ये मैट्रिक्स वैल्यू मैंने खुद सेट नहीं करी है, ये मैट्रिक्स वैल्यू भी खुद रिटर्न कर रहा है। किस तरह रिटर्न कर रहा है, इस तरह मैंने पहले बताया कि ये क्या कर रहा है। ये पहला है हमारे पास, ये बता रहा है कि कौन सी अगर मैं यहाँ खोला हुआ एक्चुअली पॉजिटिव, ये वो बता रहा है कि पहले हमारे कौन सी पॉजिटिव थी और कितनों को उसने वाकई पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉजिटिव की वैल्यूज आ जाएंगी। तो कितनी नेगेटिव थी ऑलरेडी और उसने उसको भी पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर दिया, उसको क्या क्या प्रेजेंट करते हैं एज अ फॉल्स पॉजिटिव। तो सेकंड वैल्यूज हमारे पास उसकी आती है। थर्ड वैल्यूज हमारे पास वो होती हैं जो कि पॉजिटिव थी लेकिन मॉडल ने नेगेटिव प्रिडिक्ट कर दिया। और फोर्थ वैल्यू हमारे पास होती है जो नेगेटिव थी और मॉडल ने भी उसको नेगेटिव ही प्रिडिक्ट किया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर तो 425 और 68 अगर ज़्यादा हैं, सो इट्स गुड टू सी दैट तुम्हारे पास ये से ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अगर ये ज़्यादा होती तो मतलब हमारी एक्यूरेसी गिर रही है। हमारे पास ये बहुत कम है, तो बिल्कुल ही ज़ीरो है और ये 7 है। इस ज़ीरो का मतलब ये कि इसने किसी को भी ऐसे को पॉजिटिव प्रिडिक्ट नहीं किया जो ऑलरेडी नेगेटिव है। बस इससे कुछ गलतियाँ हो गई। इसने क्या किया कि कुछ पॉजिटिव थे, उसने उन 7 को भी नेगेटिव प्रिडिक्ट कर दिया। इतना मार्जिन अभी के लेवल पे चल जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ऑलराइट, एनी फर्दर क्वेश्चन? इट्स 9:10 एंड आई एम गोना एंड द क्लास सून। ऑलराइट, okay, I guess everyone is pretty sure about today's lecture. Okay, before ending the class, let me see that what's tomorrow's lecture. मैं देख लेता हूँ, then I'll talk about that as well. I'm not having file right now. So as far I know, कल support vector machine है या फिर naive base होगा। तो कल भी हम क्लासिफिकेशन परफॉर्म करेंगे और कल की वर्कशॉप भी इंटरेस्टिंग होगी। हमारी जो सबसे डिफरेंट वर्कशॉप अभी बीच में आएगी वो होगी नाइफ बेस की। तो जब नई बेस की जिस दिन क्लास हो तो उस दिन मुश्किल होगी समझने के अंदर, प्रोबेबिलिटी का बहुत खेल है उसके अंदर। सो डोंट वरी, उसको भी झेल लेंगे। वी आर हैविंग 4 क्लासिफिकेशन लेफ्ट एज फार आई नो: सपोर्ट वेक्टर मशीन, नैव बेस, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, एंड then I guess we will end classification. Then we'll move to unsupervised learning. देखें कितनी तेजी से हम बढ़ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। So अगर आप डेली प्रैक्टिस करें, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल अपलोड हो जाता है। 2 दिन से नहीं हो पा रहा था टाइम से, आज हो जाएगा 2-3 घंटे में और ट्यूटोरियल अपलोड हो जाएगा। आप दोबारा देखें, अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर लिया करें अपनी, इट्स वेरी एसेंशियल फॉर सर्टिफिकेशंस। और अगर कोई शुरू के 5 ही दिन नहीं आया, सो वी विल कंसिडर दोज पीपल एज वेल, नो प्रॉब्लम। लेकिन आगे आने वाले तमाम क्लासेस लाजमी है, बिकॉज वी गोना इंट्रोड्यूस reinforcement learning as well in our future classes. All right, if you guys are not having any further question, कोलैब में कोडिंग करते टाइम इंटेलिजेंस वर्क करती हैं? Okay, what is intelligence? There are 2 types of intelligence. Let me see, what are you talking about? Question. I don't know what type of intelligence are you talking about. Maybe I'm not aware of that thing. Please let me know if you are saying कि जो डिस्क्रिप्शन हमारे पास मेंशन हो रही होती है किसी स्पेसिफिक फंक्शन की, तो या कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं भी आ रही होती। सेम लाइक कंपाइलर, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती वो। डॉक्यूमेंटेशन में तो साथ खोल ले तो कोड छुप जाता है। अदरवाइज कोई और चीज़ है तो मुझसे जरूर दोबारा मुझे एलेबोरेट कर दें व्हाट इज इंटेलिजेंस, बिकॉज आई रियली नॉट नो। Okay, why do we take target tests in confusion matrix and feature tests in prediction? All right. Uh, uh, okay.
गोइंग अबव, प्रिडिक्शन में हमने फीचर टेस्ट क्यों लिया? देखिए हमने x की वैल्यूज प्रिडिक्ट नहीं करनी, हमें y की वैल्यूज प्रिडिक्ट करनी है और फीचर हमारे पास x की वैल्यूज हैं। हम x की वैल्यूज इनपुट देंगे तो वो हमें y की वैल्यूज प्रिडिक्ट करके देगा ना। दैट इज व्हाई वी आर इनपुटिंग हियर फीचर टेस्ट, और यहाँ पे हमारे पास प्रेडिक्शंस आउटपुट में हमारा प्रिडिक्ट आ रहा है। इफ वी केम हियर बिलो, कम हियर बिलो एंड सी टू द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग टारगेट टेस्ट दे रहे हैं और प्रिडिक्शन दे रहे हैं। हम दो y को कंपेयर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एस्टिमेटेड y को देख रहे हैं और रियल y को देख रहे हैं, और उनके थ्रू कंपेयर करते हैं कि कितने पॉजिटिव थे जिनको उसने नेगेटिव दे दिया और पॉजिटिव दिया, और कितने नेगेटिव थे जितने उनको पॉजिटिव दे दिया और नेगेटिव दे दिया। इस तरीके से हम फीचर टेस्ट ऊपर देते हैं प्रिडिक्शंस के लिए, प्रिडिक्शन हमारे पास आ जाती हैं, फिर हम उन प्रिडिक्शन को कंपेयर कर रहे होते हैं टारगेट टेस्ट से। सो आई होप this does some make sense for you. Okay, any further question? Okay, so I was nearly right. So वो intelligence I don't think so, मेरे ख्याल से है। All right, let me see that. And या आती है, बहुत देर में आती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे PRI लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट आ रहा है, देन आई सी प्रिंट। सो वी से दिस इंटेलिजेंस, थैंक्स टू दिस पर्सन टू टेलिंग मी दिस। या कोलैब पे होती है, बिल्कुल होती है ब्रदर, बिल्कुल होती है, गूगल ने बनाया है। ऑलराइट, ओके, मिसाल से समझा दें, क्या समझा दें? अगर आप फीचर टेस्ट की बात कर रहे हो तो समझाए तो मिसाल से भी देखें, लगता है आप लोगों को मिसाल ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। मेरे पास x वैल्यूज़ हैं और मेरे पास y वैल्यूज़ हैं। चलिए मिसाल से समझाते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है और मेरे पास एक आंसर स्क्रिप्ट है। मैंने बोला कि, या यूँ भी नहीं करते और उसको और एलेबोरेट करते हैं। मेरे पास एक नोटबुक है, मैंने आपको कहा इसको याद कर लो, आपने इसको कर लिया याद, इस सवाल का ये जवाब है, इस सवाल का ये जवाब है, इस सवाल का ये जवाब है। अब मैंने आपसे नोटबुक ले ली, मैंने क्या किया, आपको सारे वही सवाल नहीं दिए ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो सके कि आपको, आपने रट्टा तो नहीं लगाया, आपने रट्टाफिकेशन तो नहीं की, आपने लर्निंग की है ही नहीं की, आप जनरलाइज हो या नहीं हो। मैंने क्या किया, मैंने सवालों को थोड़ा मॉडिफाई किया, कस्टमाइज किया, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बुक में से कहीं और से, जो कि मैं आपको शायद पहले मालूम ना हो, मैंने वो आपको क्वेश्चन पेपर में दे दिए। अब आंसर स्क्रिप्ट लिख रहे हो, अब जो आप आंसर स्क्रिप्ट उसको देख के लिख रहे हो ना, अब आप खुद एक मॉडल हो, दिस इज योर मॉडल। आप क्वेश्चन पेपर को देखते हुए अपनी आंसर स्क्रिप्ट डेवलप कर रहे हो। अब वो आंसर स्क्रिप्ट और क्वेश्चन पेपर, अब आपको क्वेश्चन पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने आंसर स्क्रिप्ट डेवलप कर दी। अब उस क्वेश्चन पेपर के जो रियल आंसर थे ना, अब वो एग्जामिनर के पास सामने रखे हुए हैं और आपके आंसर सामने रखे हुए हैं, सपोज इट MCQs। अब वो कंपेयर करेगा कि आपने कितने सहियों को सही जवाब दिया, कितने गलत को आपने, फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स का सवाल है तो कितने ट्रू थे जितना आपने आपको ट्रू दिया, कितने फॉल्स थे जितना को आपने फॉल्स दिए। तो यहाँ पे आपकी आंसर स्क्रिप्ट एज अ प्रेडिक्शन काम कर रही है और एग्जामिनर के पास जो आंसर स्क्रिप्ट है वो एज अ टारगेट टेस्ट काम कर रही है, और वो दोनों को चेक करके बता रहा है कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। दैट इज व्हाट योर एक्यूरेसी स्कोर। नाउ आई होप कि बहुत बेहतरीन समझ में आ गया होगा। तो ये काम हम VS कोड पर कर सकते हैं। येस, यू कैन डू दिस वर्क ऑन VS कोड एज वेल। एंड वन मोर थिंग कि मुझे मालूम हुआ कि VS कोड में नोटबुक्स भी आ गई हैं। इफ़ नोटबुक हैज़ बीन डेवलप्ड इन VS कोड तो और ईजी हो जाएगा। हम कोलैब पे इसलिए काम कर लेते हैं या जुपिटर नोटबुक पे इसलिए काम कर लेते हैं कि हम इंडिविजुअल कोड को रन कर लेते हैं, लेकिन जब हम प्रोडक्शन में जाएंगे ना तो पूरी की पूरी फाइल्स बनती हैं, क्लासेस बनती हैं, एट दी एंड हम जाते हैं पायचाम या VS कोड पे ही हैं। आई पर्सनली लाइक VS कोड, तो हम जाते हैं VS कोड पे ही हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल कोड रन कर लेते हैं, और कोलैब में फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आपके पास आपका कंप्यूटर नहीं होता, गूगल का अपना कंप्यूटर होता है, जिसमें आपको 12 GB की रैम मिल रही होती है जो गूगल की डेटा सेंटर की होती है, और 107 GB की हार्ड ड्राइव मिल रही होती है जो वो भी गूगल की होती है। वो हार्ड ड्राइव भी नहीं होती, वो SSD होती है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ऑलराइट, एनी फर्दर क्वेश्चन गाइस? मुझे बोल रहा है मैंने 9 GB भर दी है इसमें, कितनी अजीब बात है। मैंने ये प्रोग्राम 4 दफ़ा 5 दफ़ा रन किया, 9 GB भर भी दिया, अब खाली भी कर दी इसने वापसी। बहुत बहुत एफिशिएंट कभी काम करता है, कभी कभी कोलैब भी हो जाएगा सुन जब आप प्रोडक्शन लेवल्स पे करने लग गया तो। ऑलराइट, एनी फर्दर थिंग? ऑलराइट, सो यू गाइस आर नॉट हैविंग एनी फर्दर क्वेश्चंस, सो ऑलराइट,
Thanks for attending this session. आज का सेशन बहुत कीमती था and now from now on every session is very important, not for the certificates as well, for the skill set as well. Always remember I am having more than 100 certificates. I have never listed all the certificates on my LinkedIn account. No one knows about certificates. Who cares? People care about how many projects you have built. आप अपनी GitHub के ऊपर कितने प्रोजेक्ट्स डालते हैं, यहाँ पे आपने कितने प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में लाइव कर रखे हैं. पीपल केयर अबाउट दोज प्रोजेक्ट्स. तो आप उन प्रोजेक्ट की तरफ जाएं, वो प्रोजेक्ट डेवलप करें, आप अपने दोस्तों को भी लाएं, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग है पेंडेमिक की वजह से भी. सो आई एम गिविंग सो मच टाइम टू दिस. सो प्लीज़ जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी कहें कि वो भी स्टडी करें, साथ लेक्चर्स पुराने भी देख लें, लेकिन रजिस्टर लाजमी करें. सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन वालों को ही मिलेंगी. एंड just carry on. I am happy to say that thanks to all 3,000 students who are learning this program. And all right. Thanks. Allah Hafiz. Bye bye.